Today we are going to study present perfect continuous tense and some words. We will start from words. At first we will study some useful words which are very useful for our daily life. Then after we will start present perfect continuous tense. Now write some words. Lay foundation. Lay foundation means new देना. Set free means आजाद छोड़ देना. Next, attach importance महत्व देना. Make room जगह देना. जगह देना. Administer medicine or prescribe medicine. Administer medicine or prescribe medicine means दवा देना. Before going further in the next word, I am to illustrate you the use of these all words, how to use. Our first word is lay foundation. Lay foundation means new देना. In this word you will have to object here. You will have to use object here. Like if you have to speak the sentence, अगर आपको sentences ये बोलना है कि मैं घर का नींव देता हूं, तो बनेगा I lay house foundation. Object will be here at the mid part of word. अगर मैंने तुम्हें आजाद छोड़ दिया, I set you free. मैं तुम्हें महत्व दे रहा हूं, I am attaching, दे रहा हूं before present continuous. I am attaching you importance. वह मुझे जगह देता है, he makes. वह मुझे जगह देता है, ता है means present indefinite. B5, he makes me room. डॉक्टर तुम्हें दवा देता है, डॉक्टर administers you or prescribes you medicine means you will have to use object at the mid part of these all words. Now our next word, pay homage. Pay homage means श्रद्धांजलि देना. श्रद्धांजलि देना. Make an offering of flowers. फूलों की श्रद्धांजलि देना. फूलों की श्रद्धांजलि देना. नेक्स्ट, lay down one's life. Lay down one's life means जान देना. Next, meet the expense.
खर्चा देना. नेक्स्ट, गिव शेल्टर, आश्रय देना. As I already told you how to use these all words, you'll have to use object at the meat part of word. Like, जैसा कि मैंने बताया कि इन सारे वर्ड का यूज कैसे करना है, आपको ऑब्जेक्ट को मीट पार्ट में यूज करना है. जैसे अगर वो मैं गांधी जी को श्रद्धांजलि देता हूं तो बनेगा आई पे गांधी जी होमेज. अगर मैंने गांधी जी को श्रद्धांजलि दिया पास्ट टेंस तो बनेगा आई पे का B2 क्या हो गया जी, पेड. बनेगा आई पेड गांधी जी होमेज. अगर मैं गांधी जी को फूलों की श्रद्धांजलि देता हूं बनेगा आई मेक गांधी जी, ऑब्जेक्ट विल बी हियर, आई मेक गांधी जी एन ऑफरिंग ऑफ फ्लावर्स. नेक्स्ट, इन दिस वर्ड you will have to remove once and according to subject you will have to change once. Instead of once you will have to use possessive adjective. यहां पे क्या करना है कि once को हटाना है और सब्जेक्ट के अनुसार once का यूज होगा और यहां possessive adjective का प्रयोग होगा, अधिकारवाचक विशेषण लगेगा. जैसे करो कि मैं जान देता हूं तो I lay down my life. इंस्टीड ऑफ वंस क्या बन गया, my. अगर कि तुम जान देते हो तो बनेगा you lay down your life. अब अगर V2 होता कि तुमने जान दे दिया तो बनता you laid, ले का V2 होता laid down your life. नेक्स्ट, meet the expense, खर्चा देना. मैं तुम्हें खर्चा देता हूं, I meet you the expense. वह मुझे आश्रय देता है, he gives me shelter. So etc. You have to use these all words. Now I am going to give you some more words. Give words. वचन देना. अगर मैं तुम्हें वचन देता हूं, आई गिव यू वर्ड्स. उसने मुझे वचन दिया, B2 दिया, पास्ट इंडेफिनिट, ही गेव मी वर्ड्स. लाइक दिस. नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेट, बधाई देना. कंसोल, सांत्वना देना और हौसला देना. नेक्स्ट, टॉन्ट, ताना देना. नेक्स्ट, फ्राइटेन, डरा देना. Next, spoil, बिगाड़ देना. Today you will have to remember these all words which all are related to देना. आज जितने वर्ड हैं सब देना से जुड़ा हुआ है, आपको आज यही वर्ड याद करना है. Now next we will start present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. But before starting present perfect continuous tense, I am to teach you use of for and since. I am going to teach you use of for and since. Because in present perfect continuous we will have to use for and since.
पहले मैं आपको फोर और सिंस का यूज बता रहा हूं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में फोर और सिंस का यूज करना है। देखिए, लिसन टू मी। फोर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स समय की अवधि के लिए। while since is used to express point of time। point of time means exact time, निश्चित समय के लिए। listen to me, 4 is used to express period of time। 4 का प्रयोग समय की अवधि को बताने के लिए किया जाता है। while जबकि since is used to express point of time, जबकि since का प्रयोग निश्चित समय को बताने के लिए किया जाता है। समय की अवधि हो, ड्यूरेशन हो तो 4 लगाएंगे, और अगर टाइमिंग एग्जैक्ट हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो तो since लगाएंगे। we will have to use 4 and since in present perfect continuous tense। try to understand। Let's suppose we have to speak। मान लीजिए हमें बोलना है कि मैं 1 घंटा से पढ़ रहा हूं, तो 1 घंटा कौन से घंटा? 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, it's not clear। So there is period of 1 hour। यहाँ पे 1 घंटे की पीरियड है, अवधि है। अवधि है तो क्या लगाएंगे? 4 1 आवर। लेकिन अगर होता मैं 1 बजे से खेल रहा हूं, तो 1 बजे क्या था? पॉइंट ऑफ टाइम था, एग्जैक्ट टाइम था, तो सिंस होता सिंस 1 o'clock। 2 बजे since 2 o'clock, 3 बजे since 3 o'clock respectively। Now अगर होता मैं 3 दिनों से खेल रहा हूं, तो कौन सा 3 दिन? इट्स नॉट क्लियर। यहाँ पे 3 डेज की पीरियड है, अब पीरियड है तो 4 लगाएंगे। 4 डेज तो 4 डेज का पीरियड है तो 4 लगाएंगे, 4 डेज। लेकिन अगर होता कि मैं रविवार से खेल रहा हूं, मैं संडे से खेल रहा हूं, तो संडे क्या था? एग्जैक्ट टाइम था, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस थर्सडे एटसेट्रा। जस्ट द सेम in the month also, year also। so for the period of time we'll have to use 4, and with the point of time we'll have to use since। now I am going to start this present perfect continuous tense। rule of identification। rule of identification means पहचानने का नियम। listen to me, if we get ता रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, etc with verb plus timing at the last part of Hindi sentence we understand that this is the sentence of present perfect continuous tense। understand, listen to me, rule of identification, पहचानने का नियम। if we get, अगर हम लोग पाते हैं, ता रहा है, ती आ रही है, ती आ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, etc इत्यादि with the verb क्रिया के साथ, प्लस टाइमिंग, साथ में टाइमिंग लगा हुआ होगा,
यू मस्ट हैव रेड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं। आपने रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा होगा, बट देयर वाज नो टाइमिंग, बट इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देयर इज टाइमिंग, दैट्स द डिस्टिंक्शन। तो प्लस टाइमिंग, साथ में टाइमिंग होगा एट द लास्ट पार्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्य के अंत में। वी अंडरस्टैंड दैट, हम लोग समझते हैं कि दिस इज द सेंटेंस, द इज यूज्ड टू मेक द सेंटेंस एम्फैटिक। द का प्रयोग सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए भी किया जाता है। दिस इज द सेंटेंस, यही वो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो लास्ट में क्या मिलेगा? तारा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, etc. Listen to me. Any word which is continue for a long time, right now that word is continue, and probably the word will be continue in the future. That's the word, that's the sentence of present perfect continuous. मान लीजिए पहले से कोई काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होने की संभावना हो, तो वही सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। जैसे कि मैं 4 दिन से सो रहा हूं या सोते आ रहा हूं। अब इसमें टाइमिंग लगा हुआ है कि मैं 4 दिन से सोते आ रहा हूं, मतलब पहले से सो रहा हूं, अभी भी सो रहा हूं और आगे भी सोने की संभावना है। क्लियर? अगर मैं 4 दिनों से सो रहा हूं या सोते आ रहा हूं, तो पहले से सो रहा हूं, अभी भी सो रहा हूं, आगे भी सोने की संभावना है, वही सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। देखिए आपको डाउट कहां आएगी कि रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, और रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन? अंतर क्या है? तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ टाइमिंग लगा हुआ होगा, और अगर टाइमिंग नहीं लगा होगा तो फिर वो कंटिन्यूअस हो गया। टाइमिंग लगा हो तो हैव बीन, हैज बीन से बनेगा, और टाइमिंग नहीं लगा हो तो इज ए मार से बनेगा। क्लियर? नाउ लिसन टू मी। Today your attention should be on those sentences which end by dint of तारा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइमिंग। आज आपका ध्यान उन्हीं वाक्यों पर होना चाहिए जो तारा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं से एंड हो और जिसमें टाइमिंग लगा हुआ हो। लिसन टू मी, आई एम गोइंग टू टीच यू अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला विल बी सब्जेक्ट हैव और हैज प्लस बीइंग बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर सीन्स प्लस टाइमिंग। Now I am going to teach you where we have to use have or has. Have और has कहाँ लगाएंगे ये बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए I, we, you, they और plural name means more than one name. I, we, you, they और plural name के साथ have लगाएंगे। Very simple. He, she, it और single name मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगाएंगे। एज यूजुअल बिफोर मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी। तो लिसन टू मी, आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम के साथ हैव, ही, सी, इट सिंगल नेम के साथ हैज। बिफोर मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी बिफोर। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल, some examples I am to provide you. Listen to me. मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं या पढ़ाते आ रहा हूं। अब सेंटेंस में गौर कीजिए, मैं 4 घंटे से पढ़ाते आ रहा हूं, मतलब अभी भी पढ़ा रहा हूं, आगे भी पढ़ाने की संभावना है। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो गया। अब चलिए मैं का सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ देखिए क्या लगेगा हैव, तो बन गया आई हैव। अब वी हैव टू यूज बीन, बीन, आई हैव बीन
अब वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना का टीच, बट हमें यहाँ बिफोर लगाना है, तो बन गया टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर होता तुम्हें पढ़ाते आ रहा हूं, उसे पढ़ाते आ रहा हूं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, आई हैव बीन टीचिंग। अब कितना है, 4 घंटा, तो 4 घंटा पीरियड है, क्योंकि कौन सा 4 घंटा पता नहीं है, 4 घंटे क्या होती है, तो हम लगाएंगे 4 आवर्स, बन गया आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 आवर्स, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 आवर्स। नेक्स्ट, अगर वो कि वह 2 दिनों से सो रहा है या सोते आ रहा है, तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। लेकिन अगर होता है कि वह सोमवार से सो रहा है, टाइमिंग होता, तो बनाते ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मंडे। अगर मैं 1 बजे से गा रहा हूं या गाते आ रहा हूं, टाइमिंग होता, एग्जैक्ट टाइमिंग होता, तो होता आई हैव बीन सिंगिंग सिंस 1 o'clock। आई होप यू आर गेटिंग। पीरियड ऑफ टाइम हो तो 4 लगाना है, और पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस लगाना है। नाउ आई एम गोइंग टू इलस्ट्रेट यू हाउ टू यूज निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। मैं आपको समझा रहा हूं कि निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट हो, तो यू मे सी द प्रीवियस वीडियो ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। You understand how to use negative interrogative. In negative sentence, after have and has there will be not. Negative में have has के बाद यहाँ पे not हो जाएगा, यानी short में होगा haven't और hasn't। अगर यहाँ negative लगाओगे तो subject haven't, hasn't, been before object, for since, timing। मैं 4 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं 4 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ तो haven't हो जाएगा, I haven't been teaching for 4 hours। अगर मैं 2 घंटे से नहीं सो रहा हूं तो I haven't been sleeping for 2 hours। अगर वो कि वह 1 बजे से नहीं खेल रहा है, he hasn't been playing since 1 o'clock। अगर मैं 2 दिनों से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं तो I haven't been reading, ऑब्जेक्ट हो गया बुक, अब 2 दिन है तो for 2 days। I haven't been reading book for 2 days। Now, in interrogative what you have to do? Interrogative में आपको क्या करना है? Interrogative sentence means प्रश्नवाचक वाक्य। You will have to remember in each and every sentence। आपको हर सेंटेंस में याद रखना है। If we get क्या, if we get क्या in the commencement or starting of in the sentence, in such a circumstance helping verb is used first। अगर किसी सेंटेंस के शुरुआत में क्या हो तो ऐसी स्थिति में हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे। जैसे अगर वो कि क्या मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे हैव और हैज पहले हो जाएगा, हैव एंड हैड फर्स्ट। सब्जेक्ट विल गो इंस्टेड ऑफ नॉट, सब्जेक्ट नॉट की जगह पे हो जाएगा, यानी क्या पहले हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा। आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ हैव होगा, ही सी इट सिंगल नेम के साथ हैज होगा। लिसन टू मी, क्या मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं या पढ़ाते आ रहा हूं, तो बन गया हैव आई बीन टीचिंग फॉर 4 आवर्स। क्या तुम 2 घंटे से सो रहे हो, तो हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह सोमवार से गाना गा रहा है, अब वह के साथ क्या पहले तो हैज को लगाएंगे, हैज ही बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मंडे। इवेंचुअली क्वेश्चन मार्क विल यूज, इवेंचुअली क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नाउ स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य। इफ यू गेट एनी क्वेश्चन वर्ड एट द मिड पार्ट ऑफ हिंदी, अगर आप कोई भी क्वेश्चन वर्ड को हिंदी के बीच में पाते हो, in such a case question word is used first in the commencement of English। अगर हिंदी के बीच में क्वेश्चन वर्ड मिले तो इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लगता है। जैसे अगर हो कि मैं 4 घंटे से क्या पढ़ा रहा हूं, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया यहाँ, क्या, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैव हैज, फिर सब्जेक्ट होगा।
मैं 4 घंटे से क्या पढ़ा रहा हूं, तो बनेगा व्हाट हैव आई बीन टीचिंग फॉर 4 आवर्स, क्वेश्चन मार्क्स। अगर वह 3 घंटे से कहां खेल रहा है, अब क्वेश्चन बढ़ गया कहां, तो हो जाएगा वेयर हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। आई होप यू आर गेटिंग। तो नाउ watch the video again and again, over again, and repeat with this all video so that you understand the tense in better way. Now please like, subscribe and share if you like my video. Thank you. Bye bye.